Good morning, friends. In previous class, we have understood the basic laws of exponents and we have done two questions of exercise 12.1. Now we are going to continue our exercise. We will start from question number 3rd. In question number 3rd is find the value of, बहुत simple सा question है, we have to find the value of each and every part. In first part, the question is 3 raised to power 0 plus 4 raised to power minus 1 then into 2 raised to power 2. जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की, वी विल यूज दैट एंड देन वी विल सॉल्व इट. 3 की पावर 0 का क्या मतलब है 1. 4 की पावर माइनस 1 का मतलब है 1/4 माइनस 1 को हम पॉजिटिव 1 बना देंगे. पावर इज पॉजिटिव 1. नाउ दिस इज इन ब्रैकेट एंड 2 रेज टू पावर 2 का क्या मतलब है 4. 2 2 जा 4. Now 1 plus 1 by 4, LCM will be 4. 4 plus 1 into 4, that is 5 by 4 into 4. 4 4 cancel. Answer is only 5. Okay. Now similarly look at the second part. आपको बस step by step जाते जाना है. Whatever you can do with the numbers. Like in 2 raised to power minus 1 into 4 raised to power minus 1 and then divided by 2 raised to power minus 2. ठीक है. 2 की पावर now in first step we will make all the power as positive. 1 by 2 into 1 by 4 in a bracket divided by 1 by 2 की पावर 2. ठीक है. यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 4 की पावर 1 है, means the number will remain same. So this will become 1 by 8 divided by 1 by 4 which is equal to 1 by 8 divide converted to multiply और जो 1 by 4 है वो क्या बन जाएगा 4 by 1. Whenever we divide two fractions, two changes take place simultaneously. First change, this divide will be converted into multiply and the second number will be done as reciprocal. 4 1s are 4, 4 2s are 8. So the answer is 1 by 2. Now we will look at the third part. In third part the question is 1 by 2 की पावर minus 2 है, then plus 1 by 3 की पावर minus 2 plus 1 by 4 की पावर minus 2. ठीक है. इन सब की पावर नेगेटिव है. So in the first step I will convert each the power in positive. That will be 2 by 1 की पावर 2 plus 3 by 1 की पावर 2 plus 4 by 1 की पावर 2. So 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 and 4 का स्क्वायर 16. We will add all these. What we will get? 4 plus 9 13 and 13 plus 16 is 29. Now similarly we will look at fourth part. In fourth part the question is very simple. एक सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है. उसमें क्या है 3 की पावर minus 1 प्लस 4 की पावर minus 1 प्लस 5 की पावर minus 1 and outside this whole bracket the power is 0. मतलब इस पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है 0 means its value is 1. अगर पूरे ब्रैकेट के बाहर ही पावर ही उसकी 0 है then it is only 1. Now fifth part we will see. Fifth part में क्या है minus 2 by 3. एक minus 2 यहाँ है और दोबारा यहाँ पे क्या है 2. ठीक है. यहाँ पे एक minus 2 अंदर है और एक 2 बाहर है. So first of all this negative power will be converted to positive. That will become 3 by minus 2 की power 2 and outside is 2. Now this 2 will be multiplied. So minus 3 by 2 की पावर 2 into 2 which means minus 3 by 2 की पावर 4. अब इसका क्या मतलब है minus 3 की पावर 4 upon 2 की पावर 4. तो minus 3 की पावर अगर 4 है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81. 4 नेगेटिव साइन होंगे so the number will become positive. 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. So the answer will be 81 by 16. So in this way we have solved third question
Now we will look at the next question. Now we will look at the next question, that is question number 4. In question number 4, the question is evaluate, मतलब दोबारा हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ए पार्ट 8 की पावर -1 इंटू 5 रेज टू पावर 3 देन 2 रेज टू पावर -4. ठीक है. इन द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, आई हैव टू मेक द नेगेटिव पावर एज पॉजिटिव. तो ये क्या बन जाएगा, जो 8 - 1 है वो नीचे आएगा तो प्लस बन जाएगा. एंड दिस 2 इज -4, सो इट विल गो अबव एंड विल बिकम पॉजिटिव. ठीक है. अब इसको कंप्लीटली सॉल्व करना है. 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, 2 को 4 बार लिखेंगे हम, इंटू 5 की पावर 3, दैट इज 125. 5 इज 25, 25 5 is 125 एंड देन 8. 2 to the 4, 4 to the 8, ये कैंसिल हो जाएगा. सो 2 इंटू 125 दैट इज 250. ठीक है. तो उसका आंसर बहुत सिंपली आ गया 250. इवेल्युएट करना है मतलब कंप्लीटली हमें सॉल्व करना है. नाउ सेकेंड पार्ट इज 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक ऑल द पावर एज पॉजिटिव. इट विल बिकम 1/5, 1/2 और इनकी पावर 1 होंगी, देन द नंबर विल रिमेन सेम, इंटू 1/6. सो 1/10 इंटू 1/6 दैट इज इक्वल टू 1/60. ठीक है. नाउ सिमिलरली वी विल लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन. नाउ दिस फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों है ये इंपॉर्टेंट, लुक एट दिस. इट्स डिफरेंट बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन में है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एम. एम की वैल्यू फाइंड करनी हमें, फॉर विच 5 रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 5. ठीक है. अब हमें m की वैल्यू निकालनी है. वी विल सिंपली फॉलो द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. नाउ बेस इज सेम, सो बेस विल कम एज कॉमन. डिवाइड का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी. एंड 5 रेज टू पावर 5. 5 की पावर इट विल बिकम m+3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5. नाउ वी हैव सॉल्व्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड वी गॉट द राइट हैंड साइड ऑल्सो. अब यहाँ इक्वल्स का साइन है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हैं. दोनों में बेस भी सेम है. अब लेफ्ट और राइट को बराबर भी होना है, बेस भी सेम है, तो अब क्या बचा, दैट पावर शुड ऑल्सो बी सेम, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो इससे ये हुआ दैट देयरफॉर m+3 इज इक्वल टू 5. ये बेस और ये पावर और ये पावर भी इक्वल होनी चाहिए, देन ओनली this left hand side will become equal to the right hand side. So when I will solve this equation, 5 minus 3, then m is equal to 2. हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व किया, राइट हैंड साइड को एज इट इज रहने दिया क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं सॉल्व करने को. नाउ आई हैव टू मेक बोथ LHS and RHS equal. Base is also same. So what next should be same? That is power should also be same. Then only the LHS and RHS will be equal. तो मैंने पावर्स को भी इक्वल करके m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. नाउ वी विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें इवेल्युएट करना है. लुक एट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज 1/3 की पावर है -1 माइनस 1/4 की पावर है -1, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर भी एक -1 है. Now when we will solve it, first of all we have to convert this negative power and positive. तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 1, आउटसाइड में -1. So 3 की पावर 1 is 3, 4 की पावर 1 is also 4. So 3 minus 4 is -1. -1 की पावर -1. Now I will make it positive. 1 upon -1 raised to power 1, which is equal to -1 only. Okay. Similarly, we will look at the second part. In second part, I have 5/8 raised to power -7 into 8/5 raised to power -4. Now, first of all, I will make this power as positive. This will become 8/5
रेज टू पावर -7। अच्छा, एक और चीज हम कर सकते हैं, उसको हम पॉजिटिव, सॉरी दिस विल बिकम +7। नेगेटिव को मैंने क्या बना दिया, रेसिप्रोकल करके द पावर हैज बिकम पॉजिटिव। इसको मैं एज इट इज रख रही हूं। नाउ वी कैन सी द बेस इज सेम, सो बेस विल कम एज कॉमन, मल्टीप्लाई साइन इज देयर, सो द पावर्स विल बी एडेड। 7 plus -4, so what I will get, 8/5, 7 minus 4 that is 3, which means 8 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है एंड 5 ऑल्सो 3 times. So 8 का क्यूब होता है 512 upon 125. This will be the answer. Now one more question. We will look at question number 7. In question number 7, the question is simplify. Like we have to solve it up to that limit, जिसके बाद वो और छोटा नहीं हो सकता है. So we will look at first part, that is 25 into t की power -4 upon 5 raised to power -3 into 10 into t की power -8, and it is mentioned that t is not equal to 0. इसका क्या मतलब है? देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास t है, तो अगर t 0 होगा, डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा, then it will be a not defined form. That's why it is mentioned that t is not equal to 0. Now in the very first step, two things we have to do. Number one, all the negative power we have to convert it into positive. And second thing, ऐसे अगर कोई नंबर है जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, that will do. तो 25 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, that will come 5 into 5. Now this t raised to power -4 is there, तो मैं इसको नीचे लिख दूंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. देन ऊपर का हो गया. अब डिनोमिनेटर में देखिए 5 की पावर -3 है, सो इट हैज टू गो अबव, सो दैट 5 की पावर 3 होगी. 10 है, 10 को हम क्या लिखेंगे, 2 into 5. नाउ t is -8 in denominator, so it can go in numerator, that is t raised to power 8. ठीक है. अब इसको हम और सॉल्व करेंगे. 5 1 2 3 4 5, पूरी कितनी बार 5 आ गया, 5 बार. 3 बार यहाँ है, 4 और 5 इंटू t की पावर. अब देखिए यहाँ पे t की पावर 8 है, यहाँ पे t की पावर 4 है, एंड बोथ आर इन डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, t की पावर 8 - 4, और यहाँ पे 5 की पावर 5 है, नीचे 5 की पावर 1 है, दैट विल बी 5 - 1. ठीक है. और नीचे सिर्फ क्या बचेगा, 2. देखिए ये जो 4 था वो मैंने ऊपर माइनस कर दिया है, ये जो 1 था ये भी मैंने ऊपर माइनस कर दिया है. सो 5 की पावर 5 - 1 इज 4, t रेज टू पावर 4 अपॉन 2. इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें, 5 की पावर 4 का मतलब है 5 5 = 25, 25 5 = 125, एंड 125 5 = 625. The answer will be 625 t raised to power 4 upon 2. ओके. तो इस तरीके से मैंने इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया है. अब इसके बाद ये और छोटा नहीं हो सकता है. Now similarly look at the second part. In second part the question is 3 raised to power -5 into 10 की power -5 into 125 upon 5 raised to power -7 into 6 raised to power -5. So in the first step I will make all the negative power as positive. तो जो यहाँ पे नेगेटिव है वो नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगा, ये 125 ऊपर ही रहेगा. Now 125 we will do prime factorization, so that will be 5 raised to power 3, क्योंकि 125 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे then this 5 will come 3 times. ठीक है. So I have written all the numerator. This is here, this is down, this is also down. Now we will look at denominator. This is negative, तो ये ऊपर आ जाएगा. Okay, this is also negative, तो ये भी ऊपर आ जाएगा. Now 5 raised to power 3 + 7 is 10. 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं. 6 का भी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. Now 3 raised to power 5, 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5 की पावर 5. मैंने 6 को भी ब्रेक कर दिया और 10 को भी ब्रेक कर दिया. 3 को ब्रेक नहीं कर सकते थे, सो आई हैव केप्ट एज इट इज. नाउ 5 raised to power 10. नाउ आई विल स्प्लिट द पावर.
इट मीन्स 2 raised to power 5 into 3 raised to power 5. इसका यही मतलब होता है अगर इसको मैं ओपन कर दूं ब्रैकेट को. सिमिलरली in denominator also 2 raised to power 5 into 5 raised to power 5. Now this is cancelled, this is also cancelled. क्या बचा है 5 की पावर 10 अपॉन 5 की पावर 5. Now they are in divide, base is same, so power will be subtracted. 5 raised to power 5. अब 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है. 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा. एक और बार मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम. So that will be 3125. So the answer will be 3125. So in this way we have completed exercise 12.1. The next exercise we will do in our next class. Thank you, students.